Are you getting my voice? Yeah, sure, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Then, what we have studied in last class? Sir, about rational numbers. Okay, representation of a rational number on number line. Okay, तो आपने इस चीज सीख लिया था. How can you represent a rational number on number line? The next topic is absolute value of a rational number. What do you mean by absolute value? तो मोड के अंदर की जो वैल्यू होगी, देखो कोई भी वो नेगेटिव नंबर हो पॉजिटिव नंबर हो, अगर आप उसको मोड के अंदर डाल दोगे, है ना, जैसे कोई भी नंबर हो, अगर उसको मोड के अंदर, इसको मोड बोलते हैं, मोड के अंदर भी नंबर अगर आप डालते हो तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है. चाहे वो 2 हो या -2, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी. ठीक है. जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर रेशनल नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन. बिना साइन के उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसी को आप बोल सकते हो. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल्स मॉड्यूल. ओके, एग्जांपल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/5 इज 3/5. Similarly, the absolute value of 6/7 is mod 6/7 equal to 6/7. Okay. Now equivalent rational number. Equivalent rational number का मतलब क्या हुआ? ऐसे rational number जो आपस में equal हो, है ना? Two rational number are said to be equivalent if one of the rational numbers can be obtained from the other by multiplying or dividing its numerator and denominator by the same non-zero number. Okay. What? Two rational number are said to be equivalent. It will be equivalent if one of the rational number can be obtained from other by multiplying or dividing. For example के लिए आप देखो, if I say tell me one equivalent rational number of 2/5, then you can get a lot of infinite equivalent rational number by multiplying it with different number. For example, if you multiplying by numerator denominator with 2, then you get 4/10. So say that 2/5 is equivalent to 4/10. Both are equal. मैं अगर आपसे बोलूं कि 2/5 के 5 इक्विवेलेंट नंबर लिखकर दिखाओ, देन क्या करोगे आप? तो एक तो हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों में तो मिल जाएगा. 2/5 मल्टीप्लाइंग 3 सर 4/10 आएगा सर पहले वाला. मल्टीप्लाई बाय 3. हाँ सर. 4/10 आएगा जी सर. सर. ओ सॉरी, 4/10 आएगा. 4/10. ओके. उसी तरह अगर आप इधर नीचे को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे then you get 6/15. So 6/15 also are equivalent rational number of 6/5. Understood? आप समझ में आया आपको क्या है equivalent rational number? We can get a equivalent rational number by what? By multiplying a rational number, multiplying or by dividing a rational number with the same non-zero number. जैसे 2/5 का एक equivalent 4/10 होगा. और क्या फाइंड कर सकते हो आप? बहुत सारे नंबर निकाल सकते हो सकता है. अब अभी हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, we can multiply it by 3 also, 4 also, 5 also, है ना? We have infinite number, we have infinite choice. There will be infinite equivalent rational number of 2/. Okay, but how can you check the given rational number are equivalent or not? आप कैसे बताओगे कि जो नंबर है वो इक्विवेलेंट है या नहीं? सपोज चेक करने के लिए बोला जाए, चेक whether the following number are equivalent or not. 15/30 and 1/2 are equivalent or not. Then we have 15/30 and 1/2, and we will have to check that the given number are equivalent or not. Then we should use cross multiplication here. Okay, मल्टीप्लाई किया हमने तो यहाँ 15 into 2 क्या हुई 30 और
30 into 1 क्या आई 30, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, सो वी कैन से दैट 15 upon 30 is equal to what, हाफ। अंडरस्टूड। आपको परफॉर्म क्या करना है, जैसे सपोज करो मैं आपसे बोल दूं कि 4 upon 5 and 2 upon 3 are equivalent or not, so here we perform the cross multiplication, then 4 into 3 is equal to what, 12, and 2 into 5 is equal to what, 10. So you can say here, you can see here 4 upon 3 is not equal to, is equal to 2 is to 5. Hence 4 upon 5 is not equal to 2 upon 3. ये बोल सकते हो कि 4 upon 5 2 upon 3 के इक्विवेलेंट नहीं है। कोई नंबर इक्विवेलेंट है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ गया होता कि टेल विच ग्रेटर, इन दोनों रेशनल नंबर में कौन सा ग्रेटर है, 4 upon 5 बड़ा या 2 upon 3, तो आपने जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तो किसकी वैल्यू, इसका मतलब हुआ आप केवल ऊपर से ध्यान देना है, यानी कि फिलहाल अभी आप इक्विवेलेंट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बेटा किसके इधर टीवी चल रही है? आप इसको देखना, आपसे अगर बोला जाए कि इज 14 upon 21 and 2 upon 4 are equivalent, then again perform here cross multiplication. Okay, then after multiplying 14 into 4, what will you get? 56, and 21 into 2 you get 42. So 56 is not equal to, since 56 is not equal to 42, that's why we can say that 14 upon 21 is not equal to 2 upon 4. That is they are not equivalent. Okay, 14 upon 21 is not equal to, okay, by using cross property we get 14 into 4 equal to 56 and 21 into 2 is equal to 42. Since 56 is not equal upon 21 and 2 upon 4 are not equivalent. Okay, सिंपली देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ, अगर दो रेशनल नंबर इक्वल है तो वो इक्विवेलेंट है। अगर 2 upon 5 4 upon 10 इक्वल है, दोनों की वैल्यू अगर आप इसको फिर से कैंसिल करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे, तो इसकी वैल्यू 2 upon 5 ही होगी, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल होना, दो रेशनल नंबर इक्वल है, देन दे आर इक्विवेलेंट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो कभी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, है ना, अगर वो कैंसिल आउट हो सकते हैं, जैसे सपोज करो मैं बात करूं, ठीक है, 56 अपॉन फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले ये कुछ चीजें याद रखना है। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन रेशनल नंबर डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अगर किसी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, देन द रेशनल नंबर इज सेड टू बी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहली बात तो ये भी देखना है कि कुछ भी जो कॉमन फैक्टर है वो नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जो गिवन रेशनल नंबर है उसके, जो गिवन रेशनल नंबर है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 के अलावा भी कॉमन नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड होने की दो चीजें बताई गई है। स्टैंडर्ड तभी हो सकता है, पहला स्टैंडर्ड होने के लिए, कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पहला कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, कॉमन फैक्टर ओनली 1। और दूसरा होना चाहिए कि कभी भी डिनोमिनेटर पे नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, हमेशा नेगेटिव साइन न्यूमरेटर पे होना चाहिए या मिडिल में होना चाहिए। कभी भी डिनोमिनेटर में तो उसको उठाकर आप न्यूमरेटर पे करो तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा,
ठीक है, तो अभी क्या देख रहे हो 56 अपॉन में 35, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो आप देखोगे कि इसको कैंसिल आप नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 56 35 दोनों आ जाए, यानी ये तो अब इन 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 56 अपॉन 35 दोनों का जो एचसीएफ है ना, दोनों का एचसीएफ 1 में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, और अभी स्टैंडर्ड नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो डेनोमिनेटर है वो नीचे है, उसको उठाकर कहाँ करो, न्यूमरेटर में कर दो, अगर आप इसको न्यूमरेटर पे लिख दोगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? सॉरी 56 था ना ये, तो 7 के टेबल में जा सकता था, सॉरी 7 के टेबल में ये जा, 7 के टेबल में आप लोग काट सकते हैं, 7 के टेबल में 8 बार में, 7 के टेबल 5 बार में, तो -8/5 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, मेरे ध्यान नहीं रहा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता था, इसको मतलब और ज्यादा हम क्या कर सकते थे, इसको कैंसिल आउट करके छोटा बना सकते थे, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा 56 अपॉन में -35 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले तो उसको कैंसिल करिए, है ना, कैंसिल करके इसको इसके लोवेस्ट फॉर्म में लाइए, देन 7 के टेबल में 8 बार में और 7 के टेबल में 5 बार में, तो इसकी वैल्यू हो गई -8/5 है। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है कंपैरिजन एंड द ऑर्डरिंग ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है, कैसे कंपेयर करेंगे, आपके पास दो रेशनल नंबर है, सपोज करो कि दो रेशनल नंबर है, दोनों को कंपेयर कैसे करें, तो वही काम करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे, है ना, आप क्या करना है, इसको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, है ना, इसका मतलब हुआ कि 12 35 से मल्टीप्लाई कर दो और 17 को 29 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, देखो क्या हो रहा है ध्यान से, ये 12 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 35 से, और 17 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 29 से, तो जब आप 35 इंटू 12 करोगे तो उसकी वैल्यू 420 हो गई, और 29 इंटू 17 करोगे तो उसकी वैल्यू 493 हो गई, तो एक बात बताओ कौन बड़ा है, 420 बड़ा है या 493, तो 4 बड़ा है ना, तो 493 किसके कारण हुआ, 29 में मल्टीप्लाई करने से, है ना, यानी इस वाले साइड में जो जब हम 17 को मल्टीप्लाई किए तो वो बड़ा था, ध्यान देना, इसके इधर आने से मल्टीप्लाई होने से, मतलब 29 में जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ, हमारे यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 29 से, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको कंपैरिजन करना है कौन बड़ा कौन छोटा, अगर सपोज करो कि 29 से मल्टीप्लाई करने के बाद इधर का पार्ट, तो इसका मतलब हुआ कि ये नंबर पूरा का पूरा ये रेशनल नंबर बड़ा होगा, और अगर आपने 12 से मल्टीप्लाई किया तो 35 वाला पार्ट बड़ा हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा होगा, ठीक है, तो स्मॉलर एंड ग्रेटर की जहां तक बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर से देख लो, we have to compare which will be the greater number, 35/17 or 29/12, then we should perform here cross multiplication, multiply 35 with 12 and 29 by 17, if we get 35 into 12 is greater than 29 into 7, then 35/70 will be greater, and if we get 29 into 17 is greater than 35 into 12, then 29/12 will be greater। क्लियर है? फिर से मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर कंपैरिजन करना है, आपको बताना है कि कौन बड़ा है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन है, आपको 7 में मल्टीप्लाई करना है या तो 22 में मल्टीप्लाई करना है। 7 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, सॉरी 22 -22 में 5 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 में किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, तो आपने मल्टीप्लाई किया, 7 इंटू -44 -308 हो गया, ठीक है, वैसे ही 20 -25 -110 हो गया, और एक बात बताओ कौन बड़ा है, 308 ग्रेटर है या -108, कौन ग्रेटर कौन सा है, तो ग्रेटर कौन है, -108 ग्रेटर, 10 ग्रेटर है, ठीक है, सो सिंस -100, हाँ, क्योंकि ये ग्रेटर है, आप देख रहे हो ना, तो समझ में आ रहा है ना, ये कंपैरिजन करना है समझ में आपको, अगर
आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर आप फिर से देख लो। यहाँ पर हमें क्या करना है, 44 को -7 से मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है। 44 को -7 से मल्टीप्लाई करिए आप, तो इसकी वैल्यू आ गई -308। और इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ गई -110। चूंकि -110 ग्रेटर है -305 से, ठीक है। तो -110 कब मिला, जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब हुआ ये नंबर बड़ा है। सॉरी, -107 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला था। -110 तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके मिला था ना, 22 से मल्टीप्लाई करके मिला था। 22 वाले पोर्शन में, 22 में जब आपने -22 में जब आपने 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये 110 मिला था। और जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो -308 मिला था। चूंकि ये बड़ा है ना। जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिला, 110। एक तरीके से इसको आप ऐसे देखो कि जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला -308, और जब आपने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको मिला क्या, -110। तो चूंकि -110 बड़ा, इसमें 12 अपॉन -22 अपॉन में 14, -20 जो होगा वो बड़ा होगा -7/14। यहाँ पर एक चीज है, मिस्टेक मेरे को लग रहा है कुछ। यहाँ पर मिस्टेक है, ये साइन इधर की तरफ होना चाहिए, ये नंबर बड़ा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि माइनर ट्रेन गेटर है। क्योंकि जितना ज्यादा स्मॉल नंबर नेगेटिव में होगा वो उतना ज्यादा बड़ा होता है। जितना जितना स्मॉल होगा वो उतना ज्यादा ग्रेटर होगा, और जो जितना ज्यादा बड़ा होगा नेगेटिव में, तो आपको पता है ना, जैसे -5 और -5 और -6 में कौन बड़ा होगा? -5 बड़ा होगा। 5 और 6 में कौन बड़ा होगा? 6 बड़ा होगा। नेगेटिव में ठीक उल्टा हो जाता है। तो यहाँ भी तो वही हो रहा है। 110 बड़ा है या -110 बड़ा होगा या -306? तो -110 बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि ये नंबर सिस्टम में हमेशा 300 से राइट में रहेगा, 300 के राइट में होगा। क्लियर है ना यहाँ तक? अच्छा, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर चूंकि मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला है हमें, 22 से मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पोर्शन बड़ा है, ये पार्ट नंबर बड़ा है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कंफ्यूज मत करना। आई थिंक कॉम्पिटिशन में आ गया है। एक बार फिर से मैं आपको कॉम्प के बताता हूँ। एक सिंपल सा नंबर ले लेता हूँ। सपोज करो कि मैं बोलूँ -12/7 एंड -11/8। दोनों में ग्रेटर कौन है? कंपैरिजन करिए, विच इज ग्रेटर नंबर इन बोथ। देन फर्स्ट यहाँ पे भी आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करना है। 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे -7 में, 8 से मल्टीप्लाई करो 12 में। देन 12 -12 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 96। और -11 इंटू 7 क्या आएगा आपके पास? -77। नाउ कंपेयर विच विल बी ग्रेटर, और -77, तो बड़ा कौन है इसमें? देन यू गेट -77 इज greater than -96। ओके, नाउ ये 77 कब मिला आपको? जब आपने इसको 11 से मल्टीप्लाई किया, 11 वाले पोर्शन में मल्टीप्लाई किया तब आया। यानी कि ये जो नंबर है -12/7, और that is we can say that -11/8 is greater than -12/7। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। 2/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, नंबर लाइन में आप क्या किया, बीच में 0 रख लिया। ठीक है, इधर को क्या करना है आपको, इधर को 1 रख लिया, इधर को 2 रख लिया, इधर को 3 हो गया। यहाँ पे आपको -1 पुट कर लेना है। ठीक है,
-2, ऐसे ही चलता रहेगा जो भी हो। अब हमें रिपोर्ट कर किसको करना है, 2/3 को। तो यहाँ से पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर जो है 3, इसका मतलब हुआ कि हर नंबर के बीच में आप 3 इक्वल डिवीजन कर ले। तो 3 इक्वल डिवीजन करते हैं इसको, 1 2 हो गया, 1 2 3 3 डिवीजन हो गए, 1 2 3 डिवीजन हो गए। ऐसे इधर भी 1 2 3 डिवीजन हो गए, 1 2 3 डिवीजन हो गए। अब आप चलिए नंबर को डिनोट करिए। पहला वाला जो हो गया, ये हो गया 0/3, ये हुआ 1/3, ये हुआ 2/3, ये हुआ 3/3, ये हुआ 4/3, ये हुआ 3। ऐसे करके उधर चलता रहेगा। इधर को आ जाओ लेफ्ट में, तो ये हो गया -1/3, -2/3, -3/3, जिसकी वैल्यू -1 भी हो जाएगी, -4/3, -5/3। तो नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट किसको करना था, 2/3 को। 2/3 कहाँ पर है, यहाँ पर। आप यहाँ पे लिख दीजिए a = 2/3, हो गया रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही 5/7 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, 0 बीच में रख लो, इधर को रख लो 1, ऐसे कंटिन्यू इधर को चलेगा, इधर को रख लो -1, कंटिन्यू इधर को चलेगा। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर के बीच में 7 डिवीजन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिवीजन हो गया। इधर भी वैसे ही कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 डिवीजन इधर भी हो गया। अब ये जो पहला पोर्शन है, ये हो गया 0/7, ये हो गया 1/7, ये हो गया 2/7, ये हो गया 3/7, है ना। ये वाला पोर्शन हो गया 4/7, ये वाला पोर्शन हो गया 5/7, ये हो गया 6/7, और ये हो गया 7/7। हमें जरूरत किसको दिखाना है, हमें 5/7 को। तो 5/7 यहाँ पर, इसको थोड़ा डार्क करके वहां पर कुछ लिख दो, ABC किसी चीज से डिनोट कर दो, कर सकते हो। तो बोला गया है कि सॉलिड वैल्यू, इसकी अब सॉलिड वैल्यू लिखनी है। सॉलिड वैल्यू क्या होगी, मोड के अंदर डाल दो, 5 मिल जाएगा। इसकी अब सॉलिड लिखनी है, क्या होगी बताओ, 83 में 115 हो जाएगी। इसकी अब सॉलिड नहीं है, तो ऑलरेडी ये तो पॉजिटिव ही है, तो 5.6 ही होगा वैसे वैल्यू। 3/4 की अब सॉलिड वैल्यू क्या होगी, 3/4 ही होगी। मोड के अंदर डाल दो, 3/4 होगा। ठीक है, बोला जा रहा है कंपेयर करिए कौन सा बड़ा है कौन सा ग्रेटर है। तो आप यहाँ पर 5 से, अगर आप 6 में 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिल रहा है 18, और 5 में 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना रहेगा 20। चूंकि 3 से मल्टीप्लाई किया और 5 से, आपको केवल 3 और 5 पे सोचना है, किस में बड़ा मिला, 5 के कारण 5 वाले पोर्शन का बड़ा वैल्यू है या 3 वाले पोर्शन का ज्यादा वैल्यू है। तो आप देख लो 5 वाला पोर्शन जिसको आप 4 से मल्टीप्लाई करा रहे हो वो वैल्यू ज्यादा है, नहीं सॉरी ये 20 आएगा ना। तो 5 वाला पोर्शन बड़ा है, तो यानी ये वाला नंबर जो ग्रेटर होगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इधर को 18 देखोगे, इधर मल्टीप्लाई करो तो 5 आएगा। क्योंकि क्या देख रहे हो, 18 बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब हुआ कि ये ग्रेटर होगा, है ना। इसी तरह इसको देखो, अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे किसको, आप इसको इधर इधर को मल्टीप्लाई कराओगे और इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 24 हो गया, -24। इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो -12 आ गया। ठीक है, तो कौन बड़ा है, -12 बड़ा है। बड़ा कौन है, -12, क्योंकि -12 बड़ा है इसलिए इधर को घुमट जाएगा। इसमें देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, है ना, तो इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो इधर 3 आएगा, इधर 7 आएगा। ठीक है, हालांकि जब डेनोमीटर सेम होता है तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो जिसका डेनोमीटर छोटा बड़ा होगा वही नंबर। ठीक है, अगर दोनों के न्यूमरेटर सेम है तो जिस जिस नंबर का डेनोमीटर छोटा होता है वही नंबर बड़ा होता है, ये वाला पोर्शन बड़ा होगा। ठीक है, अभी बोला जा रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए इस नंबर को। नोट डाउन कर, बुक है आपके पास। चलिए मैं आपको आज ये वाला सिखाता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को कि कैसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। ठीक है, तो फटाफट आ जाइए। क्या है 8/5 3/2। ठीक है, मैं यहाँ नंबर लिख ले रहा हूँ, 8/5 2/3/2 3/2 और क्या है 1/6। ओके, और -5।
-5/6। इनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, तो पहले तो पता करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर में पता है द स्मॉलर विल बी फर्स्ट, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और उसके बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है। लेकिन कैसे पहचाने कौन सा बड़ा नंबर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करेंगे डेथ सारे रिमाइंडर का। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ आप पहले एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 5 2 6 6 इक्वल टू, निकालते हैं एलसीएम, क्या आएगा 5 2 6 6। इन सब का एलसीएम निकालोगे, 5 के टेबल में तो लगने वाला नहीं है, केवल 2 के टेबल में, ये तो आता ही नहीं है 1 बार में, 3 बार में और ये 3 बार में, फिर 3 के टेबल में लगा सकते हैं। यहाँ 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो एलसीएम जो आ गया वो कितना आ गया आपका 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 6 5 जा 30। ओके, एलसीएम आपके पास टी आ गया। अब एलसीएम 30 आ गया, तो अब हमें परफॉर्म क्या करना है कि जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है जिनका डिनोमिनेटर जो होगा वो 30 होगा। तो एक बात बताओ, 8/5 को एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है, एक ऐसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है जिसका डिनोमिनेटर 30 हो, तो कितने से मल्टीप्लाई कराएंगे? तो ऐसा करने के लिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नहीं, जब आप यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कराओगे, है ना, जब यहाँ पे आप 6 से मल्टीप्लाई इस डिनोमिनेटर में, तब आप देखोगे कि इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू 30 हो जाएगी। अब ये तो 30 हो गई, तो ऊपर की भी वैल्यू चेंज हो गई, नहीं 48/30। वैसे दूसरा वाला पकड़ लो 3/2, नहीं 3/2। चलिए 3/2 को यहाँ भी वही काम करना है आपको। क्या करना है, डिनोमिनेटर को, यहाँ दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई कराओगे कि डिनोमिनेटर 30 हो जाएगा। तो ऐसा 30 बनाने के लिए नीचे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से। अगर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कराओगे देन न्यूमरेटर में भी आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या हो गई 45/30। इज दैट क्लियर? अच्छा, फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ आपके पास 1/6, तो 1/6 को आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में करना है जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 30 हो। तो 36 में कितने से मल्टीप्लाई कराओगे, 30 होगा 5 से। अगर यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई 5/30। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, एक लास्ट वाला बच गया -5/6। ठीक है, -5/6। तो चलिए इसको फटाफट, इसको 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे को डिनोमिनेटर में कितने से मल्टीप्लाई कराओगे आप, 5 से। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हो तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई -25/30। तो आपने क्या किया कि जो चारों नंबर थे उनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, जिसके सबकी डिनोमिनेटर जहाँ क्या रहेगी 30 होगी, मतलब जो हमने एलसीएम निकाला उसके बराबर होगी। अब आप यहाँ पे कंपैरिजन करो, यहाँ पर अगर आप कंपैरिजन करोगे तो कौन सा बड़ा है आप खुद से देख लो। अब सबका, अब आप जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वही सबसे बड़ा नंबर होगा, और जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर हो गया -25/30। ठीक है, नाउ अब आप इसको अरेंज कर लो, पहले जो जो वैल्यू मिली है उसको अरेंज करो, अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको सजाते हैं हम। अरेंजिंग देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहला आप देखोगे सबसे स्मॉल -25 सबसे स्मॉल है, नहीं तो -25 बाई, उसको पहले लिखोगे। फिर उससे बड़ा नंबर कौन सा देख रहे हो, एक है 5 है, 45 और 48 है, तो 5 है। उससे बड़ा 5/30 है। उससे बड़ा नंबर कौन सा है 45/30, और सबसे बड़ा कौन सा है 48/30। यहाँ तक क्लियर है? दैट इज, अब इसकी वैल्यू आप जो जो उसकी जो रियल वैल्यू वो पुट कर दो आप। तो सबसे स्मॉल नंबर 5/6 हो गई, फिर 5/30 की रियल वैल्यू 1/6 है, तो वो 1/6 हो गई। 45/30 की वैल्यू 3/2 है, वहाँ 3/2 रख दो आप, है ना। वैसे ही आप अगर देखोगे 48/30 की वैल्यू है, तो आपने इसको सजा दिया असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, समझ में आ गया? अगर आ गया तो नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है आपको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में सजाने का तरीका सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, काम वही करना है। एलसीएम निकाल करके जितने भी डिनोमिनेटर हैं
उनके जितने भी डेनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकाल लीजिए और उनको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करिए, जिनका डेनोमिनेटर एलसीएम के बराबर हो। अगर डिनोमिनेटर में चेंजेस होगा तो न्यूमरेटर में भी चेंजेस होना है। ठीक है, नोट डाउन कर ले, आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसके बाद ये वाला स्क्रीनशॉट भी ले ले आप। ये 4 क्वेश्चन आपके घर का होमवर्क होगा, इनको आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। आप ले लो, ये 4 क्वेश्चन आपके होंगे और एक तरीका मैंने बता दिया बनाने का, आप 4 प्रैक्टिस करोगे घर पे, 3 और हैं उसको प्रैक्टिस करोगे घर पे। और एक चीज और याद रखना, कभी भी आप सॉल्व करते समय, हालांकि ऐसा क्वेश्चन है नहीं, अगर कभी भी अगर ऐसा हो गया कि सपोज करो न्यूमरेटर पे माइनस है, तो कभी भी अगर ऐसा है तो पहले आप क्या करना, न्यूमरेटर से पहले उसको, डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले आओ। अगर नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर में है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, पहले उसको यहाँ ले आना फिर उसका सॉल्व करना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन है नहीं कहीं भी। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए 4 क्वेश्चन, बुक अगर है तो अच्छी बात, अगर वो 4 क्वेश्चन आपको करना है, ये 4 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लो आप। और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट 4 क्वेश्चन का, ये पूरे एक्सरसाइज का ही कर लो। ये कॉपी पे नोट डाउन करके आपका होमवर्क भी हो जाएगा, आप होमवर्क करोगे। ले ली स्क्रीनशॉट आप लोगों ने?